Hello everyone, my name is Dr. Aishi. Welcome back to my channel. And today in this video, we'll be starting a new thing, and that is frog. 11th class में structural organization of animals में आपको फ्रॉग और कॉकरोच ये दो चीजों के डिटेल सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फंक्शंस इनके हमें पढ़ने हैं राइट टुडे इन दिस वीडियो विल बी स्टार्टिंग एंड कंप्लीटिंग फ्रॉग एंड देन इन नेक्स्ट वीडियो विल बी continuing with cockroach right so let's start okay so the chapter name is structural organization in animals so this basically includes all the morphological and anatomical structures of frog right in morphology we'll be studying about the structures body like how a frog looks like अगर आप एक एक्सटर्नल फीचर्स की उसकी बात करो तो क्या क्या एक्सटर्नल फीचर्स उनके पास हैं what are the functions of each and every external features that frog have and all the metabolic activities including its anatomy right whether it is reproduction system excretory system digestive system every organ system we will be dealing with every organ system in detail right this chapter is very important right and frog से हम हर साल आप एक या दो क्वेश्चन आराम से मानकर चलो राइट एंड क्वेश्चन बहुत टू द पॉइंट आते हैं बहुत ऐसा इसमें नहीं है कि आपसे कुछ वो इनडायरेक्टली पूछ लेगा एवरीथिंग विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी एज इट इज सेम वही लाइन से क्वेश्चन आते हैं ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करके क्वेश्चन नहीं आते ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि आप बहुत आराम से दो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर आपने एक एक लाइन एनसीईआरटी की बहुत आराम से पढ़ी है राइट इन दिस वीडियो ये जो जितनी भी नोट्स हैं जितनी भी स्लाइड्स हैं ये सब आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है एज यूजुअल मैं हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड ही बनाती हूँ राइट बिकॉज for NEET and for your 11th as well NEET is important NCERT is important NCERT के अलावा और कुछ नहीं आता especially in your NEET right everything which is given in your NCERT is important damn important in your NEET examination right and if we talk about this chapter तो पूरा पूरा statement NCERT का as it is ही आ जाता है they will ask about a specific functioning of one organ right or other right इससे ज्यादा वो कुछ complicate करके question इस chapter से नहीं पूछेगा right so let's start with the introduction. If we talk about the introduction, as we have studied about the classification in 11th standard as well, systemic classification में हम पढ़ते हैं that there is a classification pattern which comprises different levels. एक living organism को हम अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम में पुट करते हैं इन फॉर्म ऑफ अ टेक्सा और टेक्सॉन यू कैन से राइट कैटेगरी एक रैंक उसको देते हैं और उसी के बिहाफ पे हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं उसका नामकरण करते हैं विच बेसिकली कंप्राइजेस इट्स द जीनस नेम एंड स्पीशीज नेम राइट बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे जितने भी क्लासेस आते हैं जितनी भी टेक्सॉन आते हैं वो सब मैंने यहाँ पे फ्रॉक के लिए लिखे हैं इफ यू टॉक अबाउट द किंगडम इट इज द लार्जेस्ट class or category you can say animalia so obvious right phylum chordata it belongs to the chordata phylum chordata it means the living organism who have notochord in their lifespan right कॉर्डेटा कौन होते हैं ये हम एनिमल किंगडम में पढ़ चुके हैं कॉर्डेटा वो होते हैं जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पेन राइट subphylum if we talk about the subphylum then it belongs to vertebrata that means vertebrates are those जिनका नोटोकॉर्ड विद डेवलपमेंट डेवलप कर जाता है इनटू वर्टिब्रल कॉलम ओके सो ऑल द कॉर्डेटास जिनका नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप कर जाता है उन्हें हम एक कैटेगरी में रखते हैं विच इज नोन एज वर्टिब्रेट्स राइट क्लास एम्फीबिया एम्फीबिया एम्फी हेयर मीन्स एम्फी वर्ड मीन्स डुअल राइट सो दे शो dual habitat that means they can live in two habitats that is land and water okay amphi means dual and bia means the habitat dual habitat show करते हैं ये land और water दोनों पे रह सकते हैं anura it's the name of order which is somehow not so important for you right genus name is rana and species specific epithet you can say it's tigrina so the name the genetic name becomes rana tigrina right this is the scientific name of frog okay
Next, we come to some special characteristics which is given in your NCERT on the first page of this chapter. Right? There are some कुछ ऐसे terminologies आपको दी हुई हैं और वो terminologies इतने डिटेल में नहीं वहां पे आपको समझाई है, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे मैंने टर्मिनोलॉजीज हाईलाइट करके और फिर उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है. नंबर वन इज पोइक्लोथर्मिक. इफ वी टॉक अबाउट द टेम्परेचर रेंज, ठीक है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक रेंज तक टेम्परेचर सह सकता है, राइट. डिपेंडिंग अपॉन दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स. दे कैन बी पोइक्लोथर्मिक और दे कैन बी होमोथर्मिक. राइट. होम्योथर्मिक वो होते हैं जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, जैसे कि हम मैमल्स, राइट, ह्यूमन बींग्स, वी कम अंडर मैमल्स ओनली, राइट. पोइक्लोथर्मिक आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रखते और ये एक्सटर्नल सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, राइट. दैट मीन्स देयर बॉडी टेम्परेचर कैन वेरी और वो अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से अपने बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंटिन्यू करने के लिए दे कैन चेंज देयर टेम्परेचर एज वेल, राइट. अगर कम सर्दियों में कम करना है तो कम कर लेंगे, गर्मियों में ज्यादा करना है तो ज्यादा कर लेंगे, राइट. दे कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर, राइट. यहाँ पे लिखा है दे डू नॉट हैव a constant body temperature. They do not have a constant body temperature. Their body temperature varies with temperature of the environment, right. Such animals are also called as cold blooded or poikilothermic. Poikilotherms तो बोलते हैं, poikilothermic होते हैं, but along with that they are also known as cold blooded, right. That means they can vary their body temperature according to the temperature of their environment, right. Next is hibernation and estivation. Hibernation and estivation, you can say these are the sleep patterns of frog, right? Frogs, they are not seen during peak summer and winters. Why? Frogs are not seen during their peak winter and summer. See, ये question 11th क्लास में आपके एज इट एग्जाम्स में आ सकता है, ये स्टेटमेंट दे सकता है एंड देन यू विल आस्क व्हाई. ऐसा क्यों है? बिकॉज दिस इज द लाइन ऑफ योर एनसीईआरटी. फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर. Why? Explain. Right? Because they show hibernation and estivation. Hibernation is the winter sleep and estivation is the summer sleep. That means in peak winters and in peak summers, when the temperature is too high during peak summers and when the temperature is very low during peak winters, they undergo a sleep pattern which is named as hibernation and estivation. Right? So during this period they take shelter in deep, बहुत जो बहुत डीप एरियाज होते हैं ना, पिट्स बना के एंड दे गो देयर और वहां पे वो समर स्लीप और अपनी विंटर स्लीप कंप्लीट करते हैं, राइट. एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को, they do this, right. So summer sleep is known as estivation. Please remember this, right. Please don't get confused between estivation and hibernation. Estivation is the summer sleep and your hibernation is winter sleep, right. Winter sleep is hibernation and summer sleep is estivation, right. The other statement or the characteristic shown by frog, very important, which is camouflage. Camouflage is basically the ability to change color to hide themselves or to protect themselves from their enemies, right. फ्रॉग क्या करता है, अपने आसपास की सराउंडिंग के उसके जो कलर होगा वही वो कलर इम्बाइब करने लगता है धीरे धीरे, राइट. इट कैन चेंज इट्स कलर विद इन नो टाइम अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग, सो दैट उसमें और उसके आसपास की सराउंडिंग में बहुत वो आराम से वहां पे छुप पाए, हाइड कर पाए अपने आप को, जिसकी वजह से उसकी एनिमीज और प्रेडेटर्स उसको ट्रेस ना कर पाए, राइट. दिस प्रोटेक्टिव coloration or the change of color or this ability to change color to protect themselves is known as camouflage, right. It is also in common words, it is also known as mimicry. Mimicry means when you mimic something, जब आप किसी चीज की कॉपी करते हो, राइट. सो फ्रॉग क्या कर रहा है, कलर कॉपी कर रहा है, अपने सराउंडिंग का कलर कॉपी कर रहा है, तो उसे मिमिक्री भी बोलते हैं, राइट. कैमोफ्लेज इज, यू कैन से, अ बायोलॉजिकल और अ साइंटिफिक नेम which is given, which has been used in biology, but in common words, you can say mimicry is the word, right? So, camouflage is nothing, it's just the mimicry that frog do according to its surrounding. किसकी मिमिक्री करता है, कलर की मिमिक्री करता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग. Okay, so these are the three important terminologies that are given for frog, right. Now we come to the frog morphology. Morphology, we all know that morphology is the physical appearance, किस तरह से वो बाहर से दिखता है. यहाँ पे
बहुत ही टू द पॉइंट स्टेटमेंट्स मैंने लिखी है जो एनसीईआरटी में आपको दी हुई है, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट। सो अगर मैं फ्रॉग की स्किन की बात करूं, आउटर स्किन की बात करूं, तो इनकी स्किन बहुत स्मूथ और स्लिपरी होती है, क्योंकि इनकी आउटर लेयर, आउटर स्किन पे म्यूकस प्रेजेंट होता है, राइट? म्यूकस कैसा होता है? स्लिपरी होता है, स्मूथ होता है, इसीलिए इनका जो स्किन होता है वो बहुत स्मूथ और स्लिपरी होगा, right? And it is always maintained in a moist condition. Okay, skin is always maintained in a moist condition. आप सिर्फ इतना याद रखो, इनका स्किन जो होता है स्मूथ और स्लिपरी होता है। Why? Because they have mucus on their outer body. इनकी डॉर्सल साइड पे जो कलर होता है वो ऑलिव ग्रीन होगा विद सम इरेगुलर स्पॉट्स। और वेंट्रल साइड पे, लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड फर्स्ट। डॉर्सल साइड इट कवर्स बैक, बैकवर्ड रीजन्स, राइट? बैक एरियाज जितने भी बॉडी में प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज डॉर्सल सरफेस। और वेंट्रल, दैट मीन्स फ्रंट रीजन्स, फ्रंट surfaces are known as ventral side, right? Let me just give you a hint here. See, this is the dorsal। अगर मैं सीधा फ्रॉक की बात करूं तो, राइट, सी इज द, अगर मैं ऐसे हाथ पाम की बात करूं तो, इफ माय हैंड इज प्लेस्ड लाइक दिस, तो ये जो सामने का सरफेस है दिस इज द वेंट्रल साइड, और इसके पीछे का जो एरिया है दैट इज डॉर्सल साइड, राइट? तो वो क्या बोल रहा है कि जो डॉर्सल सरफेस होता है फ्रॉक का वो ऑलिव ग्रीन इन कलर होता है विथ सम इरेगुलर डार्क स्पॉट्स, यू कैन सी हिम। अगर फ्रॉक को सीधा ऐसे करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज आर द, राइट? ये इसका डॉर्सल सरफेस है, दिस इज द डॉर्सल सरफेस, राइट? डॉर्सल साइड, और ये पूरा एरिया है वेंट्रल साइड, राइट? सो डॉर्सल सरफेस ऑलिव ग्रीन, राइट? और उस पे कुछ डार्क इरेगुलर स्पॉट्स प्रेजेंट है। और अगर मैं इसके वेंट्रल सरफेस की बात करूं तो इट इज समहाउ येलोइश इन कलर। ओके, देन व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? frog never drinks water but it absorbs water through स्किन। फ्रॉग कभी पानी पीता नहीं है, वो हमेशा अपनी स्किन से वाटर एब्जॉर्ब करता रहता है, राइट? And the body of frog is divisible into two parts, and that is head and trunk. Please remember, frog, they do not have a neck area or a tail. They do not have neck or tail. Even they have, even though they have their head and trunk, but उन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट ऑर्गन जो बेसिकली ज्यादातर बॉडी पार्ट्स में होता है, आपकी बॉडी में भी प्रेजेंट है। हेड और ट्रंक को ज्वाइन करने वाला एरिया है नेक, बट दे डू नॉट हैव नेक। उनका हेड डायरेक्टली उनकी ट्रंक पे रखा हुआ होता है। They do not have an intermediate joining part that is known as neck. Along with that, they also do not have tail. Okay, they own their body is divided into only in two parts, that is head and trunk. Tail and neck are absent. Right? Above mouth there is a pair of nostril. ओके, आईज कैसी होती है उनकी? बल्जी आईज होती हैं, बाहर की तरफ बल्ज्ड आउट आईज होती हैं, एंड दे आर कवर्ड विद अ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर। जब वो वाटर में होते हैं तो ताकि उनकी, बिकॉज उनकी आईज कैसी, अगर हम अपनी आईज की बात करें तो हमारी आईज, आई जो ऑर्बिट है इसके अंदर embedded है, our eyes are embedded in this orbit, right? But फ्रॉग की आईज ऐसी नहीं होती, वो ऑर्बिट में embedded नहीं होती, दे आर बल्ज्ड आउट, वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है। सो व्हेन दे गेट इन कांटेक्ट विद वाटर, बहुत आराम से आईज उनकी डायरेक्टली वाटर के कांटेक्ट में आ सकती है, राइट? सो टू प्रोटेक्ट दोज बल्जी आईज एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे आप बोलते हो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इस पे चांद सितारे जितने बनाने बना लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, what is the function of nictating membrane? It protects the bulgy eyes of frog from while they are in water, because you know that ये डुअल हैबिटेट शो करते हैं, दे आर एम्फिबियंस, वाटर और लैंड दोनों पे होते हैं। तो व्हेन दे आर इन वाटर, आइस को प्रोटेक्ट कौन करेगा? लैंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग इन कॉन्टैक्ट विद either with water or anything else which is harmful for their eyes. But when they are in water, पानी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे, बिकॉज आईज दे आर नॉट embedded in the orbit or in socket, they are bulged out, right? So that's why they need a membrane which can protect their eyes in water, and that membrane is known as nictatic membrane, a very important thing, right? On either side of eyes, a membranous tympanum which receives sound signals. Okay, दोनों आंखों के साइड में, राइट, ऑन ईदर साइड, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ एक वेल डेवलप्ड ईयर प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे हमारे पास वेल डेवलप्ड ईयर प्रेजेंट है, इनर पार्ट भी है उसमें, इनर ईयर, मिडिल ईयर है, एक्सटर्नल ईयर है, ये ईयर पिन्ना है जिसमें,
ऐसा नहीं होता. वेल डेवलप्ड ईयर इज नॉट प्रेजेंट, इट्स जस्ट राइट. एक होल टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा विच इज नोन एज टिम्पेनम, राइट. सो वो टिम्पेनम प्रेजेंट होता है एंड इट रिसीव्स साउंड सिग्नल. So tympanum, a membranous tympanum is present as ear, which receives sound signal. Okay. Next, they have hind limbs and forelimbs that help them in borrowing, leaping, walking, swimming. सारी चीजों में hind limbs and forelimbs उनकी मदद करते हैं. Webbed digits are found their feet for swimming. When we talk about their hind limbs, इनके hind limbs ना webbed होते हैं. जैसे आपके ये जो fingers हैं, you can see आपकी जो digits है ना, they are separated from each other. They are not connected. But इनकी नहीं होती. इनकी आपस में webbed होती है, connected होती है. Right? Let me just show you in diagram. See this. आप देख रहे हो ये पोर्शन. This is. ये देखो. इनके सारे ये जो digits हैं हिंड लिम्स के 1 2 3, अभी आपको 3 बहुत आराम से विजिबल है. ये दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जैसे वेब होता है लाइक दिस. इफ दिस इज राइट, सो दे आर कनेक्टेड इस तरह से. ओके इस तरह से दे आर कनेक्टेड. इनको बोलते हैं वेब्ड फीट. वेब्ड फीट होती है. वेब्ड क्यों होती है फीट? फॉर स्विमिंग, राइट. आपने देखा है वो स्विम सूट पहनते हैं तो वो इस तरीके से वेब्ड फीट में वो लगाते हैं. ठीक है, अगर बहुत डाइविंग करते हैं तो वो आपके फीट में वो इस ऐसी वेब्ड फीट लगाने की कोशिश मतलब फीट लगा के स्विमिंग करना सिखाता है ताकि बहुत आराम से आप वाटर को क्रॉस करके आगे बढ़ सको, राइट. सो दे आर इम्पोर्टेंट फॉर स्विमिंग. ओके चलिए. नेक्स्ट इज frogs exhibit sexual dimorphism. Sexual dimorphism. See, what is dimorphism? First, di means two, morphism comes from morphology. So sexual dimorphism मतलब जो दोनों sexes हैं, male and female, they will be differ from each other. Okay, when there is a morphological difference इन बोथ द सेक्सेस ऑफ वन स्पीशी, एक ही स्पीशी के दोनों सेक्सेस में कोई भी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है तो उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, राइट. डायमॉर्फिज्म मतलब दो मॉर्फोलॉजी आपको देखने के लिए मिलेगी इन टू डिफरेंट सेक्सेस, राइट. इन मेल एंड फीमेल देयर विल बी अ very identifying difference will be there. Okay, so same species के individual same species को belong करेंगे but the male and female will be different from each other. Okay, that is known as sexual dimorphism, right. See, this is the trunk part, this is head. आप देख रहे हो trunk और head डिवाइड मतलब इस तरह से जैसे हमारा हेड और ट्रंक अलग पता चलता है बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद अदर ऑर्गन नोन एज नेक. बट इनके पास नेक नहीं है तो इनका हेड और ट्रंक दे आर डायरेक्टली अटैच टू ईच अदर. आईज यू कैन से दे हैव बल्जी आईज, राइट. फोर लिम्स, हिंड लिम्स. फोर लिम्स आप देख सकते हो वेब्ड नहीं है बट हिंड लिम्स वेब्ड है. ओके, सी दिस इज द टिम्पेनम. मैं बोल रही थी आंख के जो आईज के जस्ट पास में ऑन इधर साइड, ये एक साइड का दिख रहा है दूसरी साइड भी सेम वही होगा. एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे टिम्पेनम बोलते हैं. दिस इज टिम्पेन. ओके, नेक्स्ट. सो दिस completes your morphology. Now we have anatomy. And the anatomy we have, the first is digestive system. Okay, so number one is digestive system. So if we talk about the digestive system, it consists of alimentary canal and some digestive glands as well. एलिमेंट्री किनाल इनका शॉर्ट होता है बिकॉज दे आर कार्निवर्स, राइट. सो इनके इंटेस्टाइन का लेंथ होता है, दे हैव रिड्यूस्ड इंटेस्टाइन, वी नो दैट. ओके, हर्बीवोर्स का इंटेस्टाइन का लेंथ बड़ा होता है बिकॉज दे हैव लॉन्ग इन alimentary canal, because herbivores they feed on plants and plants have cellulose in their cell wall which is very difficult to digest. Okay, हम normally ये सोचते हैं कि कार्निवोर्स और जो ओमनिवोर्स कार्निवोर्स जो होते हैं वो ज्यादा मतलब
नॉन वेज इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, बट ऐसा नहीं है. वेजिटेरियन फूड इज प्लांट बेस्ड डाइट इज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. ओके, इफ वी कंपेयर बिटवीन प्लांट बेस्ड एंड मीट based diet, plant based diet is difficult to digest. Why? Because plants have cellulose in their cell wall, right? And cellulose is the one of the toughest micro biomolecules, which is very difficult to digest. Whereas if we talk about meat based diet, क्या है? Animal से animal derived है. Animal derived जो डाइट होती है उसके पास सेल वॉल नहीं होता है. आई डू नॉट हैव एनी सेल्यूलोज और सम एनीथिंग, बिकॉज एनिमल्स के पास क्या होता है? सेल वॉल होती ही नहीं है. एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है. सो इफ वी कंपेयर प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड डाइट, नो, एनिमल बेस्ड डाइट इज इजी टू डाइजेस्ट. दैट्स वाई जो कार्निवोर्स होते हैं उनके पास रिड्यूस्ड एलिमेंट्री कैनाल होती है, उनके इंटेस्टाइन छोटी होती है एज कंपेयर टू दी herbivores because they feed on plant diet. Plant based diet कैसी होती है? They have cellulose, and cellulose is very difficult to digest. That's why they have a reduced or short alimentary canal. Okay, right? Mouth opens into buccal cavity. It leads to the esophagus and pharynx. Let me just show you in a diagram. Right, this is esophagus. Esophagus, right? Esophagus से ये stomach में जाता है. Okay, stomach से intestine. Okay, this is stomach, this is intestine, right? Curved part. Okay, and this is rectum. जितना भी undigested food होता है वो rectum में stored हो जाता है, and from a single opening which is known as cloaca it comes out. Please remember, frog they have a single opening. कोई भी चीज अगर बॉडी से बाहर जानी है, whether it is in form of liquid waste, solid waste, or the ejaculation of gametes, right? Everything is done by this single opening which is known as cloaca. So एक single external opening होती है frog की body में, that is known as cloaca. So everything excretion भी यहीं से हो रहा है. Okay, and you know that frog, male frog, they are urinogenital. चलो वो हम आगे पढ़ेंगे, बट प्लीज अभी के लिए इतना याद रखो कि क्लोएका एक सिंगल ओपनिंग है. Liquid waste, urine, solid waste, fecal matter, or the ejaculation of gametes, everything will everything will be done or come out from the single opening which is known as cloaca, right? So esophagus के साथ अभी आपने कहा कि एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे लिवर, पैनक्रियाज ये भी काम करेंगे. ओके, esophagus एक शॉर्ट ट्यूब है दैट ओपन्स इनटू द स्टमक. फिर उसके बाद वो इंटेस्टाइन में जाएगा, पहले intestine, ठीक है, rectum, and then finally opens outside by the cloaca. लिवर यहाँ पे क्या secrete करे? अगर आप डायग्राम में देखो तो this alimentary canal, it loops over liver. These dark brown structures are liver. लिवर क्या करता है? बाइल जूस, बाइल सेक्रीट करता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है. इफ यू टॉक अबाउट, ये हमारी बॉडी में भी सेम यही चीज होती है. लिवर क्या करता है? बाइल जूस फॉर्म करता है और वो टेम्परेरीली स्टोर्ड हो जाता है इन गॉल ब्लैडर. तो यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज गॉल ब्लैडर. गॉल ब्लैडर में फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दिस बाइल जूस स्टोर्ड हो जाता है. जैसे जैसे डाइजेशन होना स्टार्ट होता है, यहाँ से बाइल जूस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, पेनक्रियास भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है. ये डाइजेस्टिव ग्लैंड है दैट प्रोड्यूसेस पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक करने में हेल्प करता है, राइट? फूड इज कैप्चर्ड बाय द बायलोब टंग. दे हैव अ बायलोब्ड टंग. दो लोब प्रेजेंट होते हैं इनकी टंग में, ताकि ये बहुत आराम से किसी भी चीज को अपनी टंग में इंटैंगल कर सकते हैं टू फीड ऑन एनी अदर स्मॉलर animal or insect, right? Because they are carnivores, right? So digestion of food takes place by the action of HCl. सेम जैसे हमारी बॉडी में होता है, बट आपकी सिलेबस से डाइजेशन निकल चुका है तो आपको नहीं पता है, राइट? बट यहाँ पे थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं. ओके, सो सबसे पहले हमारा जो स्टमक होता है, इट releases acid which is known as HCl, hydrochloric acid. Actually hydrochloric acid क्या करता है? हमारी बॉडी में
एसिडिक इन्वायरमेंट बना लेता है। एसिडिक इन्वायरमेंट बनाना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक इन्वायरमेंट में ही एक्टिव होकर और फिर डाइजेशन करते हैं, राइट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज, that's why the HCl works here to produce or to form a acidic environment inside stomach, ताकि आगे जाके वो जो जितने भी डाइजेस्टिव हमारे पास एंजाइम्स हैं वो काम कर सके। स्पेशली यहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटीन डाइजेशन करने के लिए जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो इसी के प्रेजेंस में एक्टिव होता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसीलिए पहले एनवायरमेंट को एसिडिक करना पड़ेगा, राइट। पार्शियली अब स्टमक के बाद फूड कैसा हो जाता है, पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाता है, बिकॉज प्रोटीन वगैरह यहाँ पे काफी सारी चीजें डाइजेस्ट हो जाती हैं। उसके बाद this partially digested food, a very important statement is here, partially digested food is known as chyme, right? This partially digested food is known as chyme and it is passed from stomach to the first part of small intestine, which is known as duodenum, right? Small intestine has three parts. The first part is known as duodenum, right? Then duodenum receive karega, again a very important thing, बाइल जूस कौन रिसीव करता है, बाइल जूस रिसीव करता है ड्यूडेनम फ्रॉम गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस सेक्रीट होता है वो कहाँ जाता है, ड्यूडेनम में जाता है। अलोंग विद दिस बाइल जूस ये पेनक्रियाटिक जूस भी रिसीव करता है फ्रॉम पेनक्रियास, फ्रॉम अ कॉमन बाइल डक्ट। एक कॉमन बाइल डक्ट होता है जो बाइल जूस भी लेकर आ रहा है गॉल ब्लैडर से और पेनक्रियाटिक जूस भी लेकर आ रहा है पेनक्रियास से। दोनों एक कॉमन पाथ में आ जाएंगे विच इज नोन एज कॉमन बाइल डक्ट एंड देन दे विल बी secreted inside the first part of small intestine which is known as duodenum, right? So say for an example, मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाकर दिखा देती हूँ, ठीक है। ये पेनक्रियास, ये गॉल ब्लैडर से आ रहा है, ये आपका पेनक्रियास से आ रहा है, राइट। ये गॉल ब्लैडर से आ रहा है, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आ रहा है वो क्या लेकर आ रहा है, बाइल जूस, और पेनक्रियास से जो लेकर आ रहा है वो पेनक्रियाटिक जूस लेकर आ रहा है, राइट। और ये एक सिंगल डक्ट में जुड़ जाएगा, ये दोनों मिलकर एक सिंगल डक्ट बना लेंगे विच इज नोन एज कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल duct, and this common bile duct will enter into the duodenum और वहां पे दोनों चीजें सिक्रीट कर देगा। अब इनका काम क्या है, बाइल जो होता है इट इमल्सिफाइज फैट एंड पेनक्रियाटिक जूस डाइजेस्ट करवाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बाइल जूस का काम क्या है, बाइल जूस फैट को डाइजेस्ट कराता है, इमल्सिफाई दैट मीन्स उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देगा, राइट, और मिक्सअप कर देगा सबको। पेनक्रियाटिक जूस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डाइजेशन कराता है, right? Finally this digested food takes place, this the digestion of the final digestion takes place inside the intestine। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक में नहीं होता, डाइजेशन कहाँ होता है, फाइनल इंटेस्टाइन, right? This digested food is absorbed by the numerous finger like folds, ठीक है, इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। बहुत छोटे छोटे, अगर मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाऊं तो इफ दिस इज द इंटेस्टाइन, राइट, तो इसके वॉल पे छोटे छोटे इस तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या करते हैं, दे इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, माइक्रोविलाई increases absorptive surface area, ठीक है, जिसकी वजह से ज्यादा डाइजेशन, जो सॉरी ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड का। और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो हम बता चुके हैं कि वो यहाँ पे रेक्टम में चला जाएगा, दिस रेक्टम विल कंटेन द अनडाइजेस्टेड फूड, राइट। और अनडाइजेस्टेड फूड टेम्परेली यहाँ पे स्टोर होता है और ग्रेजुअली इट विल कम आउट ऑफ द बॉडी थ्रू क्लोएक, ओके। दिस कंप्लीट्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। इफ वी टॉक अबाउट द रेस्पिरेशन, वी नो दैट रेस्पिरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज ब्रीदिंग, दैट मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। सो फ्रॉग मल्टीपल तरीके से गैसेस एक्सचेंज करता है, टू डिफरेंट मेथड्स। अगर मैं बात करूं, इफ द फ्रॉग इज इन वाटर तो वो दूसरे मेथड से करेगा, एंड इफ इट्स ऑन लैंड तो वो अलग
मेथड से करेगा, राइट? सो इफ द फ्रॉग इज इन वाटर, तो वो स्किन एक्ट करती है एज द लेयर फॉर गैसेस एक्सचेंज, राइट? इनकी स्किन पे एक क्यूटिकल लेयर, क्यूटिकल मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम एक आउटर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जिसे आप क्यूटिकल बोलते हो। द रेस्पिरेशन थ्रू क्यूटिकल और द गैसेस एक्सचेंज थ्रू क्यूटिकल इज नोन एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। सो क्यूटिकल के थ्रू जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसे हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। सो जब वाटर में होता है तो फ्रॉग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शो करता है, दैट मीन्स स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करेगा, राइट? और बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे, बिकॉज एट मतलब जब ये छोटे होते हैं तो इनका लंग्स इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं। धीरे धीरे अडल्ट में जब डेवलप होने लगता है तब लंग्स इनके डेवलप होंगे, और पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी ये बाद में शो करते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू स्किन, स्किन में क्या कर रहे हैं, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है तो थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है, राइट? वी नो दैट डिफ्यूजन इज व्हाट, इट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, राइट? तो सेम वही डिफ्यूजन के थ्रू स्किन से गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, और बिकॉज क्यूटिकल की लेयर के थ्रू होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्यूटिकल की लेयर के थ्रू होता है, इसीलिए इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, राइट? थ्रू क्यूटिकल लेयर, जो लेयर होती है स्किन की जिसके थ्रू होता है, दैट इज क्यूटिकल। ओके, चलिए, नेक्स्ट इज, जब फ्रॉग लैंड पे होता है तो ये तीन तरीके से रेस्पिरेशन कर सकता है। स्किन से तो करेगा ही, चाहे वाटर में हो या लैंड पे हो, तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन तो करेगा, बट अलॉन्ग विद दिस क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, व्हेन द फ्रॉग इज इन लैंड, वो बकल कैविटी से भी कर सकता है। बकल कैविटी में क्या होता है, बकल कैविटी और फैरिंक्स के बीच में एक लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं बकोफेरिंजियल लेयर, bucopharyngeal layer, bucopharyngeal membrane you can say, or a bucopharyngeal layer, right? It is between pharynx and oral cavity or buccal cavity, right? इस मेम्ब्रेन के थ्रू जब गैसेस एक्सचेंज होता है तो उसे हम बोलते हैं बकोफेरिंजियल रेस्पिरेशन, राइट? सो जब लैंड पे होता है तो इस लेयर के थ्रू भी कर सकता है, और जब वो अडल्ट हो जाता है तो बिकॉज लंग्स डेवलप कर जाते हैं तो वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी शो करता है, राइट? सो लंग्स की अगर हम बात करें, सो लंग्स आर पेयर ऑफ elongated pink colored sac like structures present in the upper part of trunk, थॉरिक्स, ठीक है, अपर थॉरिक्स में, अपर पार्ट ऑफ ट्रंक में प्रेजेंट होंगे। एयर एंटर करती है थ्रू नॉस्ट्रल्स, बकल कैविटी से, और सीधा कहाँ जाती है, लंग्स में, राइट? अब आप सोच रहे होंगे, अगर आपके पास ये क्वेश्चन बनते हैं, दैट मीन्स यू हैव अ गुड साइंटिफिक थिंकिंग। ड्यूरिंग एस्टाइवेशन और हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, क्योंकि अभी तो वो सो रहे हैं, तो when they are in during estivation or hibernation, or you can say when they are performing a sleep pattern, इनका gaseous exchange skin से होता है। इसीलिए आप देखो, skin एक ऐसा गैसेस एक्सचेंज है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और स्किन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज, जो वाटर में भी हो रहा है, लैंड पे भी हो रहा है, प्लस व्हेन दे आर इन स्लीप पैटर्न्स और व्हेन दे आर परफॉर्मिंग हाइबरनेशन और एस्टाइवेशन, तब भी ये कंटिन्यू रहता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आराम से पूछा जा सकता है। ड्यूरिंग एस्टाइवेशन और हाइबरनेशन गैसेस एक्सचेंज फ्रॉग में किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है, राइट? नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हमें यहाँ पे पढ़ना है। ओके, सो अगर हम बात करें वेस्कुलर सिस्टम की, तो वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, दैट मीन्स वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप। क्लोज टाइप क्या होता है, सी, क्लोज्ड और ओपन, दो तरीके के वेस्कुलर सिस्टम्स हमारे पास, या सर्कुलेटरी सिस्टम्स हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट होते हैं, सॉरी। क्लोज टाइप का मतलब है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मीन्स दे हैव वेसल्स, ब्लड वेसल्स, दे हैव कैपिलरी वेन्स, आर्टरीज, ये सब इनके पास है। तो जो सर्कुलेशन हो रहा है ना ब्लड का, इट इज क्लोज्ड, वेसल्स के थ्रू हो रहा है। और जब ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते, और उनके सारे जो ऑर्गन्स है, दे आर कंप्लीटली बेथड इन ब्लड, that is known as open type blood circulation, right? So blood circulatory system are of two types, closed type और open type। closed में blood vessels present होंगी, say for an example arteries, capillaries, veins, और open में ये सब present नहीं होंगे, इसीलिए उसको close बोलते हैं। closed vessels में blood circulate कर रहा है,
राइट। और ओपन में ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ओपनली ब्लड सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी। दैट्स व्हाई द ऑर्गन्स इन दिस सिस्टम ओपन टाइप, दे आर कंप्लीटली bathed in blood. Okay. फ्रॉग की अगर हम बात करें, सो दे हैव क्लोज टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मीन्स उनके पास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, राइट। अलोंग विद द सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दे हैव लिम्फेटिक सिस्टम एज वेल, राइट। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर आप बात करो तो उनके पास कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं। ऐसे ही अगर आप लिम्फेटिक सिस्टम की बात करो, दे हैव लिम्फ, ब्लड की जगह लिम्फ प्रेजेंट है, लिम्फ चैनल्स प्रेजेंट है, लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है, इन्हीं में सब आ जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज, राइट, ये सब इसी में आ जाता है। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, सो ऑफ कोर्स हार्ट की जरूर बात करनी है। सॉरी, एक्चुअली आई एम नॉट वेल, सो इट्स ओके। हार्ट, अगर हम हार्ट की बात करें, सो यू नो दैट दे आर डिफरेंट, वी हैव डिफरेंट चैम्बर्स इन आवर हार्ट. A heart can be two chambered, three chambered, four chambered. We human beings or mammals, you can say, we have four chambered heart, जिसमें दो एट्रियाज होते हैं, दो वेंट्रिकल्स होते हैं. बट इन फ्रॉग या मैं एम्फीबियंस, कलेक्टिवली एम्फीबियंस की बात करूं, दे हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट, राइट. और थ्री चैम्बर्ड हार्ट में दो एट्रिया इनके पास होंगे और एक वेंट्रिकल इनके पास होगा. सो फ्रॉग हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें दो एट्रिया प्रेजेंट है, लिखा है इधर, दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है. एंड इट इज कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम. इट इज कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम. इफ यू टॉक अबाउट दिस, तो ये एट्रियाज है एंड दिस इज द सिंगल वेंट्रिकल, राइट. दिस इज right atria, this is red one is left atria, and this is a single वेंट्रिकल. ओके, इसीलिए ये क्लोज टाइप सर्कुलेशन भी होता है. मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देती हूँ, राइट. ये दो एट्रिया है, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया और सिंगल वेंट्रिकल, राइट. ओके, सो अगर आपको याद करना है ना कि आप ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड सर्कुलेशन आप कैसे याद रखें, तो आप एक टर्म ले सकते हैं, LORD, लॉर्ड. L फॉर लेफ्ट, लेफ्ट साइड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. R फॉर राइट, और राइट साइड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इससे याद कर सकते हो आप. तो राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो आप देख रहे हो एट्रिया में मिक्सिंग नहीं हो रही है, बट ये दोनों ही ब्लड कहाँ डंप कर देंगे, वेंट्रिकल में, और यहाँ पे मिक्सिंग हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी ब्लड की. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाएंगे. ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. इस टाइप के सर्कुलेशन को हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, या फिर मिक्स्ड सर्कुलेशन भी बोलते हैं, मिक्स्ड सर्कुलेशन. ओके, राइट. अब इनका जो, ये जो ट्रायंगल, एक ये जो इनका सिंगल वेंट्रिकल होता है ना, सी, यहाँ पे आप देख रहे हो ये राइट एट्रिया, ये लेफ्ट एट्रिया और ये रेड वाला वेंट्रिकल है. आपको इसके ऊपर एक ये ट्रायंगल शेप का येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है. दिस इज नोन एज साइनस विनोसिस. साइनस विनोसिस क्या करता है, राइट एट्रिया को, ठीक है, ये ज्वाइन करता है. ठीक है, एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, जैसे आप बोलते हो साइनस विनोसिस, ज्वाइंस द राइट एट्रियम. इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना केवा. राइट क्या कर रहा है, राइट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, वेना केवा से आता है, राइट. सो राइट को कनेक्ट करता है वेंट्रिकल से. दिस इज नोन एज, दिस इज साइनस विनोसिस. वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डायग्राम देखकर और लेबल करने के लिए पूछ सकता है, और फंक्शन भी पूछ सकता है. तो दिस येलो कलर ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज साइनस विनोसिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट कनेक्ट्स द राइट एट्रियम, या ये क्या रिसीव करता है, इट रिसीव्स ब्लड थ्रू मेजर वेन्स कॉल्ड वेना केवा. और ये क्या लेकर आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, राइट.
And this ventricle opens into a sac-like structure which is known as conus arteriosus. Again, a very important statement. So हार्ट के पास, फ्रॉग के हार्ट के पास तीन चैम्बर्स तो हैं, बट अलोंग विद दिस दो अलग से चैम्बर्स और प्रेजेंट होते हैं, साइनस विनोसिस एंड कोनस आर्ट्रियोसिस. साइनस विनोसिस एंड कोनस आर्ट्रियोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अगर ब्लड की हम बात करें, सो एक पूरा आर्ट्रियल सिस्टम होता है. ओके, जब बहुत मल्टीपल आर्टरीज होती है जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ब्लड सप्लाई करती है, और उन अलग अलग पार्ट से ब्लड को रिसीव करती हैं अलग अलग वेन्स, एंड देन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ये कलेक्ट करके दे डंप ऑल दिस ब्लड इनटू द हार्ट एंड फॉर्म द वेनस सिस्टम, राइट. स्पेशल वेनस कनेक्शंस होते हैं यहाँ पे. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशल वेनस, ये तो प्रॉपर है, एक ऑर्गन से, हार्ट से एक ऑर्गन में ब्लड गया और डीऑक्सीजनेटेड फ्लूइड फिर से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में चला गया. दिस इज द कॉमन और नॉर्मल सर्कुलेशन. बट कुछ स्पेशल वेनस कनेक्शन होते हैं जिसमें एक इंटरमीडिएट ऑर्गन भी आ जाता है, एंड दैट टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज पोर्टल सर्कुलेशन. मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ. सी, नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या होता है? नॉर्मल सर्कुलेशन में दिस इज हार्ट, ऐसे ही बना लेते हैं, चलो. दिस इज हार्ट एंड दिस इज द ऑर्गन, राइट. सो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया टू द ऑर्गन, और फिर यहां से वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया वापस से हार्ट में. दिस इज अ नॉर्मल सर्कुलेशन. बट व्हेन इट कम्स टू पोर्टल सर्कुलेशन, एक स्पेशल कनेक्शन बन जाता है बिटवीन टू ऑर्गन्स. जैसे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और वो एक ऑर्गन में गया, ऑर्गन वन में गया. अब ये सीधा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में ना जाकर पहले किसी दूसरे ऑर्गन में जाए, सेकंड ऑर्गन में जाएगा, राइट. और फिर उसके बाद यह जाएगा हार्ट में. सो बिकॉज ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी से आता है तो ये वाला तो सेम रहेगा, ये आर्टरी वाला पार्ट, ये आर्टरी वाला पार्ट सेम रहेगा. बट यहां से एक बार डीऑक्सीजनेट हो गया तो वेन्स के थ्रू ये पहले दूसरे ऑर्गन में जाएगा और फिर उसके बाद हार्ट में जाएगा. दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन जिसमें एक इंटरमीडिएट, एक एक्स्ट्रा ऑर्गन आ गया, जिसे आप इंटरमीडिएट ऑर्गन बोलते हो, दिस इज नोन एज पोर्टल सर्कुलेशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ह्यूमंस में भी होता है, राइट. इस पोर्टल सर्कुलेशन को हम नाम दे देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड ऑर्गन. अगर सेकंड ऑर्गन हमारा लिवर है तो हम उसे हिपेटिक पोर्टल वेन, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम नाम दे देंगे. अगर सेकंड ऑर्गन हमारा आप मान के चलो किडनी है तो हम उसे रीनल पोर्टल सिस्टम दे देंगे, राइट. और ये जो वेन जो सर्कुलेट करती है, इसको भी हम नाम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड ऑर्गन, right. So this portal system or portal vein will be named according to the intermediate organ which is present ड्यूरिंग दिस सर्कुलेशन, राइट. तो जो भी सेकंड ऑर्गन और इंटरमीडिएट ऑर्गन प्रेजेंट होगा उसके बेसिस पे हम उसे नाम दे देंगे. आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज ऑल्सो सीन इन ह्यूमन बींग्स, राइट. सो यहाँ पे दो स्पेशल पोर्टल सिस्टम देखने के लिए मिलते हैं, एक हिपेटिक पोर्टल सिस्टम और एक रीनल पोर्टल सिस्टम, राइट. हिपेटिक पोर्टल सिस्टम में लिवर इंटरमीडिएट ऑर्गन की तरह काम करेगा, और रीनल पोर्टल सिस्टम में इंटेस्ट सॉरी किडनी विल वर्क एज एन इंटरमीडिएट ऑर्गन. ओके, ये कुछ काम करने के लिए करते हैं. से फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं लिवर की बात कर रही हूँ तो भाई डाइजेस्टिव फूड, जो डाइजेस्टिव ये जो फर्स्ट ऑर्गन है लिवर में भेज रहा है कुछ, मतलब कुछ काम करने के लिए ये सर्कुलेशन होता है. एक ऑर्गन ने दूसरे ऑर्गन को कुछ भेजना है, या फिर उस ड्यूरिंग सर्कुलेशन या अपने पास से कोई चीज एलिमिनेट करनी है, तो वो पोर्टल सर्कुलेशन की मदद ले लेता है कि भाई तुम जा तो रहे हो तो प्लीज रास्ते में उसको ये चीज दे आना. सो दिस इज पोर्टल सर्कुलेशन. ओके, नाउ ब्लड इज, ब्लड की कॉम्पोजिशन की थोड़ी बात कर लेते हैं. शॉर्ट में आपको सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है. ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स, ठीक है. सेल्स की अगर हम बात करें तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं. वी नो दैट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज हम ह्यूमन एनिमल फिजियोलॉजी में भी ये चीज पढ़ेंगे, राइट. और जो लोग पढ़ चुके हैं उन्हें ऑफ कोर्स उनको पता होगा ये बात. आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, उनको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं. डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं. एंड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं. Okay, RBCs are they are nucleate, they are enucleated.
Okay, enucleated are present in humans, but in frog, RBCs are nucleated and they contain red colored pigment, namely hemoglobin. इनका जो lymph होता है, lymph is different from blood because उसमें RBCs नहीं होते, so they are colorless. Okay. ब्लड की बात करें तो दे कैरीज न्यूट्रिएंट्स गैसेस वाटर टू द रिस्पेक्टिव साइट्स ड्यूरिंग सर्कुलेशन, और इसके थ्रू हर एक बॉडी पार्ट में वो ये सारी चीजें पहुंचा देते हैं, राइट। हार्ट से पंप हुआ और थ्रू वेन्स और आर्टरीज सारे सर्कुलेशन हमारा काम करता रहता है, राइट। सो दिस कंप्लीट्स योर सर्कुलेटरी सिस्टम एज वेल। नाउ वी कम टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेनली आपको डायग्राम के थ्रू में बता देती हूँ। So the elimination of nitrogenous waste is carried out by excretory system, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। और excretory system में क्या क्या organs present होते हैं? Number one, a pair of kidney, a pair of ureter, single opening cloaca and urinary bladder। मैं यहाँ पे सब चीज नेम आपको कर देती हूँ। This is, ये ग्रीन कलर की जो ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दिस इज किडनी, पेयर ऑफ किडनी, राइट। हर एक किडनी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसे आप बोलते हो यूरेटर। दिस इज यूरेटर। सो बिकॉज किडनी दो है तो यूरेटर भी दो ही होंगे। सो अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर। ये जो आप येलो कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। दोनों यूरेटर एक सिंगल बैग में यूरिन को डंप करेंगे, दैट इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। इसमें थोड़े टाइम के लिए यूरिन स्टोर हो जाएगा एंड देन इट विल कम आउट फ्रॉम अ सिंगल ओपनिंग विच इज नोन एज क्लोएका। अभी मैंने बताया देखो, अनडाइजेस्टेड फूड, फीकल मैटर भी यहीं से निकल रहा है, सॉलिड वेस्ट भी यहीं से एक्सक्रीट यहीं से बाहर आ रहा है, राइट। और जो यूरिन है, लिक्विड वेस्ट है, वो भी क्लोएका से बाहर आ रहा है। ओके, सो दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके। हर एक किडनी के पास कुछ सेवरल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। यू कैन रिलेट इट टू ह्यूमन किडनी एज वेल, जिन्हें आप नेफ्रॉन्स या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, राइट। इनके अंदर यूरिन फॉर्मेशन होता है। ओके। जो फ्रॉग होते हैं, दे आर यूरियोटेलिक, दैट मीन्स दे रिलीज दे और दे एक्सक्रीट यूरिया। यूरियोटेलिक मतलब ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, राइट। और एक्सक्रीटरी वेस्ट हमको पता है, इट इज सेपरेटेड, किडनी से सेपरेट होकर एंड इट विल कम आउट फ्रॉम द क्लोएका। ओके, इट इज वेरी इजी। ओके, ये डायग्राम से मैंने आपको बताया था। किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, मल्टीपल नेफ्रॉन्स विल बी देयर, राइट। उनमें यूरिन फॉर्मेशन होगा, यूरिन फॉर्म होके यूरेटर से बाहर आएगा किडनी से और स्टोर हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्लोएका से बाहर, जैसे जैसे यूरिनरी ब्लैडर फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, क्लोएका से बाहर आना वो शुरू हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम थोड़ा बड़ा है और थोड़ा समझने भी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो इफ वी टॉक अबाउट द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन फ्रॉग, जैसे ह्यूमंस में होता है न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, दोनों ही इसके पास भी दोनों होते हैं, राइट। न्यूरल कंट्रोल में सेम वही चीज, इसके पास क्रेनियल नर्व्स वगैरह ये सब चीजें प्रेजेंट होंगी, न्यूरॉन्स वगैरह ये सब प्रेजेंट होगा। और एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो इसके पास ग्लैंड्स प्रेजेंट है जो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट, ये दोनों साथ में कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करेंगे टू फॉर्म अ नर्वस सिस्टम फॉर फ्रॉग। जैसे जैसे हमारी बॉडी में प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पेनक्रियाटिक, आइलेट्स, राइट, एड्रिनल ग्लैंड्स एंड गोनल्स, सेम यहाँ पे भी प्रेजेंट है, राइट। नर्वस सिस्टम के पास, नर्वस सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, राइट, एंड एन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसके पास सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। एवरीथिंग इज रिटन हियर। Okay, 10 pairs of cranial nerves, very important. 10 pairs of cranial nerves arising from the brain, राइट। ब्रेन एक बोनी बॉक्स में कवर्ड होता है, जैसे आप क्रेनियम बोलते हो, ये हम स्केलेटल सिस्टम में पढ़े हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड अ बोनी बॉक्स जिसे आप क्रेनियम बोलते हो, राइट। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ओके, इनके ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लर्न दिस, मेमोराइज दिस टेबल बाय योर हार्ट। Forebrain, it includes unpaired diencephalon, paired cerebral hemisphere and olfactory lobes. Midbrain के पास optic lobes है, right?
हिंड लिम्स के पास मेडुला ऑब्लिंगेटा सेरिबेलम प्रेजेंट है. मेडुला ऑब्लिंगेटा it continues to spinal cord through foramen magnum. Say for an example, this is head, right? Head से और ये spinal cord आ रहा है आपका, तो इनके बीच में एक foramen, the largest foramen of body, which is known as foramen magnum. तो ये मेडुला ऑब्लिंगेटा, दिस इज मेडुला ऑब्लिंगेटा. मेडुला ऑब्लिंगेटा से पतला सा जो स्पाइनल कॉर्ड निकलेगा, तो वो कैसे जाके वर्टिब्रे से अटैच होगा, थ्रू किस तरह से अटैचमेंट देगा, सर से वर्टिब्रल कॉलम में क्या चीज कॉमन है, मेडुला ऑब्लिंगेटा स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू करता है किसके थ्रू, फोरामेन मैग्नम के थ्रू. दिस इज द लार्जेस्ट फोरामेना ऑफ बॉडी, राइट. वर्टिब्रल कॉलम इट इंक्लोजेस स्पाइनल कॉर्ड, वी ऑल नो दैट ये वर्टिब्रेज है, ठीक है. अगर हम इमेजिन करो दिस इज वर्टिब्रेज, इनके बीच में से एक, मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम में भी ये चीज बताई थी, वर्टिब्रेस में सेंट्रल में एक कैनाल होती है, ठीक है, उसमें से वो कैनाल के थ्रू एक पतला सा स्पाइनल कॉर्ड निकलता रहता है, तो वो वर्टिब्रेस की तो बात हो गई थी. बट वर्टिब्रेस और हेड में जो लास्ट पोर्शन आ रहा है ब्रेन का, दैट इज मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये कैसे कनेक्टेड है, बिकॉज वी नो दैट हेड एंड वर्टिब्रेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सो दे आर कनेक्टेड थ्रू अ फोरामेन व्हिच इज नोन एज फोरामेन मैग्नम. ओके, सो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक पर्टिकुलर चीज फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट दे कंसिस्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट, frog have some sense organs, right? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है फॉर टेस्ट, आईज फॉर विजन, सेंसरी पैपिले प्रेजेंट है फॉर टच, टिम्पेनियम प्रेजेंट है, अभी हम पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी में, विद इंटरनल ईयर्स फॉर हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट. इक्विलिब्रियम इज टू मेंटेन द बैलेंस, ठीक है, बैलेंस मेंटेन करना, बॉडी को बैलेंस करके रखना, वेदर इट इज इन लैंड और वाटर. एंड nasal epithelium is also present for smell. So these are the sense organs that are present in frog body, right? Taste buds, eyes, papillae, sensory papillae, tympanum and nasal epithelium. अगर मैं इसमें बात करूं तो sensory papillae and tympanum, these two are very important और ये ज्यादातर पूछे गए हैं, so they are very important. टिम्पेनियम के दो फंक्शन है, सिर्फ हियरिंग ही नहीं, बिकॉज आपने पढ़ा है कि टिम्पेनियम ईयर की जगह पे होता है, ईयर की तरह काम करता है, सो सिर्फ हियरिंग इसका काम नहीं है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इक्विलिब्रियम और टू मेंटेन बैलेंस. ओके, इसमें से अगर मैं बात करूं, आउट ऑफ दीज सेंस ऑर्गन्स, आईज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स, राइट. बाकी सब सिर्फ सेल्यूलर एग्रीगेशंस है, but eyes or tympanum, internal ear, they are well developed. Okay, eyes of frog, they are paired of spherical structures situated in the orbit and skull. They are simple eyes possessing only one unit. Simple eyes present होते हैं. जब आप कॉकरोच पढ़ोगे ना, तो आप उसमें पढ़ोगे कि उनके पास कंपाउंड आईज होती है, उनके पास वन यूनिट विजन नहीं होता, वो मोजाक विजन देता है, छोटे छोटे यूनिट्स को मिलाकर तब एक इमेज फॉर्म होता है, बट ऐसा फ्रॉग के पास नहीं होता. ये स्पेशली यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि आप एनसीईआरटी में फ्रॉग के साथ नेक्स्ट कॉकरोच पढ़ते हो, तो टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू ऑर्गेनिज्म आपको ये इंपॉर्टेंट है. जो फ्रॉग की आईज होती है वो सिंपल आईज होती हैं, सिंपल यूनिट, वन यूनिट विजन देती हैं, बट कॉकरोच के पास कंपाउंड आईज प्रेजेंट होता है और वो मल्टीपल यूनिट विजन देती है, जिसे आप मोजैक विजन बोलते हो, राइट. एक्सटर्नल ईयर्स, दे आर एब्सेंट इन फ्रॉग. ये हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है ये एब्सेंट होता है फ्रॉग में, ठीक है. Only tympanum can be seen externally, or the ear is an organ of hearing and as well as balance, equilibrium. ये हम पढ़ चुके हैं, अभी बताया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट. लास्ट सिस्टम इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल, बिकॉज वी हैव सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज देयर. मेल reproductive system consists of pair of yellowish ovoid testes. This is, मैं डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ, this is yellowish structures, these are टेस्टिस. ओके, टेस्टिस से, ओके, टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन होगा, ठीक है, मेल गैमीट का. ओके, द अपर पार्ट ऑफ किडनी, testes which are found adherent to the upper part of kidneys by a double fold of peritoneum called mesorchium. Very important. जो टेस्टिस होते हैं वो किडनीज के साथ में चिपके हुए होते हैं. अगर मैं इनके डायग्राम में देखूं, ये देखो, दिस इज टेस्टिस एंड दिस इज किडनी, ब्राउन कलर स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो, तो टेस्टिस आप देख रहे हो, दे आर कनेक्टेड, चिपके हुए हैं, दे आर अडेरेंट, और जिस लेयर के थ्रू चिपके हुए होते हैं उसे आप क्या बोलते हो, mesorchium. Very important, very important. What is mesorchium? Mesorchium is that double fold of peritoneum which adhere
टेस्टिस टू द किडनीज। ओके, किडनीज से डक्ट निकलते हैं जिन्हें आप बोलते हो वसा एफ्रेंशिया। 10 to 20 they are in number, and they arises from testes, or they enter the kidneys on their side and opens into the Beddoes canal। सी मैं डायग्राम में आपको दिखाती हूँ। किडनी से ये these are the vasa efferentia, राइट, बिकॉज आप देखोगे सिंगल ओपनिंग होती, सिंगल पाथ होता है फॉर यूरिन एंड फॉर गैमेट, इसीलिए उसको बोलते हैं यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट का मतलब होता है, ठीक है, दिस यूरिन वर्ड इज, यूरिनो इज वर्ड फॉर यूरिन, एंड जेनाइटल इज फॉर गैमीट, मेल गैमीट। सो अगर हम मेल की बात करें, सो मेल में जो यूरेथ्रा होता है, जो किडनी से बाहर निकलता है, यूरेथ्रा, दैट इज यूरिनोजेनाइटल इन नेचर। दैट मीन्स वो यूरिन भी कैरी करेगा और गैमीट भी कैरी करेगा। सो इसीलिए वो दोनों फंक्शन, डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है, राइट। Finally, this Bidder's canal opens into the urinogenital duct, जो common duct है किडनी का भी और testes का भी, and they finally opens into a common opening which is known as cloaca, right? Cloaca is a very small median chamber that is used to pass fecal matter, urine and sperm, very important, as it is statement आ सकता है। It is a small median chamber that is used to pass fecal matter, urine and sperm to the exterior। क्या बोलते हैं उसको, राइट, एक स्मॉल मीडियम चैम्बर जिससे फीकल मैटर, यूरिन और स्पर्म तीनों चीजें बॉडी से बाहर आ रही है। क्लोएका, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सिंगल ओपनिंग इज देयर, as you can see, this is the single opening cloaca। It is connected to kidney, it is connected to testes, it is connected to the digestive system because rectum से connected है। So everything is coming out from a single opening which is known as cloaca। Okay, अगर मैं male reproductive system की बात करूँ, the things that you have to remember is mesorchium and urinogenital tract, duct and cloaca, the single opening। Okay, and the number of vasa efferentia, they are 10 to 12 in number। Okay, नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें नहीं होता। अगर आप देखो डायग्राम में, तो मेल में सिंगल ही डक्ट है, बट फीमेल में दो डक्ट है। किडनी का डक्ट अलग है और ये ओविडक्ट अलग है। ओवरीज से जो ओवा को कलेक्ट करेगा उसके लिए डक्ट अलग है। ऑल्दो दे आर ऑल्सो दे आर इन मेल्स दे हैव अ सिंगल डक्ट, इसीलिए यूरिनोजेनाइटल बोला है, बट फीमेल में दो अलग अलग होते हैं, इसीलिए यूरिनोजेनाइटल उसे नहीं बोला। दे हैव ओवरीज, आप ये देख सकते हो, दीज आर ओवरीज। ओके, ये जो आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर ओवरीज, राइट। ये ओवर फॉर्मेशन करते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ से ओवर मेच्योर होकर बाहर आता है, राइट। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, मेल में टेस्टिस दे आर अडेयर टू किडनीज, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ओवरीज दे आर सिचुएटेड नियर किडनीज, but there is no functional connection with kidneys। मेल में फंक्शनल कनेक्शन था, ठीक है, क्योंकि सिंगल डक्ट से वो बाहर आते हैं, यूरिन किडनी से और गैमीट टेस्टिस से, बट फीमेल में ऐसा नहीं होता। सो देर इज नो सच फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन किडनीज एंड ओवरीज इन फीमेल, राइट। उसके बाद देर इज अ पेयर ऑफ ओविडक्ट इज देयर, दिस इज ओविडक्ट, इट इज रिटन हियर, दिस इज ओविडक्ट। ये रिसीव करते हैं मैच्योर्ड ओवा को, राइट। एक मैच्योर फीमेल दे ले 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम, एक सिंगल टाइम में। दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके स्कूल लेवल के लिए भी और नीट के लिए भी, वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल लेवल के लिए बेसिकली, क्योंकि नीट में तो आजकल इतना इजी क्वेश्चन वर्क से नहीं पूछेगा। तो एक मेच्योर फीमेल एक टाइम पे 2500 to 3000 ओवा एक साथ रिलीज करती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, राइट। मेल भी अपने गैमेट्स बाहर रिलीज करेगा, फीमेल भी अपने गैमेट्स बाहर रिलीज करेंगे, राइट। That's it is known as external fertilization which takes place in water। अब external fertilization में medium चाहिए, so that medium is water। Development involves a larval stage। We know that frog में larval stage होती है, tadpole is there, right। So tadpole is, it undergoes the metamorphosis। We also know what is metamorphosis। जब ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं, एक ऐसी इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिसमें रिजेंबलनेस नहीं होती, दैट intermediate stages the duration is known as metamorphosis। तो young one और intermediate stages
दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। आपको पता ही नहीं चले, आप बिल्कुल मैच नहीं कर पाओगे कि अच्छा ये जाके फ्रॉग बनेगा। नो, अब तो अभी हम डायग्राम्स देख लेते हैं, सो इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई। बट अगर आप कंपेयर करो एक अडल्ट में और मेटामॉर्फिक स्टेजेस में, तो वो दे आर नॉट आइडेंटिकल। Okay, so this completes your reproductive system as well. Now we have some economic importance for frog. Three economic importance are there. Frogs are beneficial for mankind because they eat insects and to protect crop. If we talk about farming, we know that crop में बहुत ज्यादा insects जो है crop को खराब करते हैं। तो when frog they eat insects, they are indirectly protecting। वो तो feed करेंगे नहीं because they are carnivore, तो वो plant पे feed करते ही नहीं है। सो ऑटोमेटिकली फ्रॉग से तो प्लांट बचा हुआ है, बट उनके बीच में जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको ईट कर कर उनको उन पे फीड करके दे प्रोटेक्ट क्रॉप, राइट। फ्रॉग मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस बिकॉज दीज सर्व एज एन इंपॉर्टेंट लिंक ऑफ फूड चेन एंड फूड बैग इन द इकोसिस्टम। एक इंटरमीडिएट अगर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूं जो बहुत ज्यादा हर दूसरी आपको फूड चेन फूड बैग में दिखेगा, दैट इज फ्रॉग। ओके, इन सम countries the muscular legs of frog are used as food by men. So there be some people in different countries are feeding on frog as well. Muscular legs जो होते हैं इनके, they are feeding on them, right? This completes your frog. If you have any query regarding this chapter, regarding this topic, please comment down. I'll surely get back to you. Right? Thank you.